Good morning to all of you. Today we will continue our chapter electricity, and today we will learn about Ohm's law, factors which affects resistance, resistivity, combination of resistances, use of different materials for different purposes, etc. Okay, so let us start our topic today. So in the last lecture we have read about resistivity. As we know that silver has the lowest resistivity, so that is why it is the best conductor available, but it is not economical. Okay, the resistivity of an alloy is generally higher than that of pure metals which from the alloy. Okay, so alloys have high resistance, but also they have high melting point. Okay, then the conductor, the resistivity of an alloy like constant 10 does not change with its temperature or has very less effect on its resistivity with change in temperature. So depending on the resistance, we can use different materials for different purposes. A few examples are here. Why are coils of electric toasters and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? So why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? The coils of an electric toaster and electric iron are made up of alloys instead of pure metal due to दो कंडीशन है इसकी. alloys have higher resistivity than that of constituent metals. alloys की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये जो आपके टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए बने होते हैं. alloys do not oxidize or burn readily at high temperatures. They have high melting point. Okay. Need for combination of resistances in an electric circuit. In order to obtain a desired value of current in an electric circuit, a number of resistances have to be used. Resistance can be combined in together in following three ways: series combination, parallel combination, mixed combination. We will read about series and parallel combination. Okay. So resistance in series, the current has a single path for its flow, hence the same current passes through each resistor, and so the potential difference across any resistor is directly proportional to its resistance. The potential difference across the entire circuit is equal to the sum of potential difference across the individual resistor. So let us do the derivation. एक छोटी सी derivation है आपके सिलेबस में यहाँ पर. मैं फिर लाइन लगा रहा हूँ. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीरीज और यहाँ पैरेलल. ओके, तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में देयर विल बी ओनली वन पाथ इन पासिंग या मूविंग फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर. जैसे मान लो एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये. रजिस्टर्स का सिंबल है, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द सिंबल्स. तो हमने एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया और यहाँ पे हमने की लगा दी और सर्किट को पूरा कर दिया. तो इसका पोटेंशियल है V, ये R1, ये R2 और ये R3. ओके, सो करंट पास होगा, I करंट पास होगा. जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो सीरीज में करंट सेम रहता है बिकॉज करंट को पास होने का एक ही रास्ता है. करंट विल डिवाइड व्हेन देयर इज अ टू और मोर पाथ्स. यहाँ पर तो एक ही रास्ता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का. पहले R1 से पास होना पड़ेगा, फिर R2 से और फिर R3 से. तो एक ही रास्ता है, तो करंट डिवाइड नहीं होगा, बट इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा. V1, V2 और यहाँ पर V3. ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है टोटल जो पोटेंशियल है, अब मान लो जो टोटल पोटेंशियल था V था, अब उसके तीन पार्ट्स हुए
तो कैसे भी 3 पार्ट्स हो वो तो टोटल के इक्वल ही होगा, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। तो v यहाँ पर क्या है, टोटल या नेट पोटेंशियल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर v इज इक्वल टू आई, और I यहाँ पे टोटल करंट है और R यहाँ पर क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इसको मैं RS लिख लूँगा, RS। ओके, तो यहाँ से V का फॉर्मूला आ गया I R S। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर V1 की वैल्यू निकालूंगा। तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब करंट तो R1 के लिए भी सेम है, R2 के लिए भी सेम है और R3 के लिए भी सेम है। तो V1 हो जाएगा I R1, V2 हो जाएगा I R2 और V3 हो जाएगा I R3। तो इक्वेशन नंबर 3। तो V की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई। इनको मैं पुट कर दूंगा, ओके, और सॉल्व करके फॉर्मूला निकाल लूँगा। तो V की जगह पुट कर दिया मैंने I R S, V1 की जगह पुट कर दिया I R1 और V2 की जगह पुट कर दिया I R2 और V3 की जगह पुट कर दिया I R3। ओके, तो I कॉमन है, I कॉमन लेके I कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, I RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दिस इज सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल का मतलब है जहाँ पे करंट को पास होने के लिए दो या जो दो से ज़्यादा पाथ्स हों आपके पास। ये हमने 3 रजिस्टर कॉम्बाइन कर दी, ये होता है पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्किट बना लिया, सेल लगा दिया, की लगा दिया और सर्किट को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये I R1 R2 R3, ये V होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट आया, यहाँ पे करंट को जब यहाँ पर पहुँचेगा वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B। जब A पॉइंट पे पहुँचा वो, तो A पॉइंट पे उसे 3 डायरेक्शन में डिवाइड होना है, 3 डायरेक्शन में। तो डिवाइड हो जाएगा वो 3 पार्ट्स में, I1 I2 और I3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। R1 के अक्रॉस I1 और R2 के क्रॉस I2 और R3 के क्रॉस I3। फिर दोबारा जब यहाँ पे आएगा, B पॉइंट पे आएगा, तो B पॉइंट पे दोबारा इकट्ठा हो जाएगा, दोबारा से I बन जाएगा, I1 I2 I3। तो अगेन अब यहाँ पे करंट अलग अलग हो रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अब I का फॉर्मूला निकालेंगे तो V अपॉन R
अब ये टोटल करंट निकाल रहे हैं हम। टोटल करंट के लिए हमें पास टोटल पोटेंशियल आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे पैरेलल में निकाल रहे हैं तो आर पी लिख लेंगे हम। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम I1 निकालेंगे, VR1, I2 निकालेंगे, VR2, I3 निकालेंगे, VR3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I की जगह V/RP, V/R1 I1 की जगह, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। तो सबसे V कट जाएगा, तो जब V कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास अब, I तो यहाँ पर आ जाएगा 1, सॉरी, तो 1 आ जाएगा। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस को कम करना हो तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज योर कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने डिराइव करके दिखा दिया। और जब हम पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा और करंट अलग अलग। सीरीज़ में क्या सेम था, करंट सेम था और पोटेंशियल अलग अलग था। तो पैरेलल का ये डायग्राम आएगा और ये उसका हमने ड्राइव करके दिखा दिया आपको। अच्छा, अब एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल, क्या क्या एडवांटेज हैं। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें क्या है, देखो जितनी यहाँ पर वोल्टेज है, जितनी यहाँ पर वोल्टेज है उतनी ही सभी डिवाइसेस को मिल रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो अगर इनमें से एक भी डिवाइस अगर फ्यूज होता है तो बाकी सब डिवाइस चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज़ में यही प्रॉब्लम है, सीरीज़ में अगर एक भी डिवाइस अगर फ्यूज हो गया तो बाकी डिवाइसेस नहीं चलेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज इक्वल टू द सप्लाइड वोल्टेज, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड। और इससे एक और फ़ायदा भी है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको भी हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको जितनी वोल्टेज चाहिए वो उतनी उनको मिल सकती है, सबको सेम वोल्टेज, ठीक है, जितनी उनको वोल्टेज चाहिए उनको मिल सकती है। और दूसरा, अगर एक भी डिवाइस अगर फ्यूज़ होता है तो दूसरे डिवाइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि अगर सीरीज़ में आप लगाओगे तो अगर पूरे घर की अगर आपने जो वायरिंग है वो सीरीज़ में करवा ली, तो अगर आपके घर में एक छोटा सा बल्ब भी फ्यूज़ हुआ तो उससे पूरे घर का जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो नहीं जल पाएंगे। सो दिस इज़ इट।